morning, student. Welcome in 10th English classroom. I am Mrs. Vandana Gamne from Hindi Madhyamik Vidyalaya Nasik, which is run by Krantiveer Vasantrao Narayan Rao Naik Education Society, Nasik. We are studying the second unit of our syllabus, and here I am with the third poem of our syllabus. The name of the poem is The Twins, which is written by Henry Sambrook Leigh. You can see here the pictures of the twins. Twins means judwa. So this poem is about the twins. The central theme of the poem is the problem faced by one of the identical twin. If any one person takes a birth as a twin, what problems does he faces is expressed very beautifully in this poem. Not only beautifully, the poet has expressed it in a very humorous way. तो बच्चों, ये जो पोएम है, ये पोएम ट्विंस है. ट्विंस मतलब चित्र में देख रहे हैं जुड़वा. तो उसकी जो सेंट्रल थीम है कि दोनों में से अगर कोई एक जुड़वा पैदा होता है तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, कैसे कैसे मजाक होते हैं, ये पोएम सब उसी बारे में है. तो उसमें से कभी हंसी पैदा होती है कि एक को दूसरा समझ बैठते हैं और सब बातें एक दूसरे के बारे में बता देते हैं, तो वो एक हंसी पैदा होती है. लेकिन अगर एक ने गलती की स्कूल में और दूसरे ने मार खाया तो फिर वो भी बहुत तकलीफ होती है, ऐसी बातें होके. तो ये सारे प्रॉब्लम्स जो है वो प्रॉब्लम्स ट्विंस फेस करते हैं, और वो कैसे होते हैं इस पोएम में बहुत मन से ये प्रॉब्लम बताने की कोशिश की है. इस पोएम में ज़्यादा तौर पे हाइपरबली यानी एग्जाजरेशन नाम की जो फिगर ऑफ स्पीच अलंकार जो है वो यूज़ किया है, यानी छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ा कर बताना. इतनी सी बात होती है लेकिन वो इतनी बढ़ाकर बताने की कि ऐसे लगने लगता है कि उस बात में कोई दम ही नहीं है. लेकिन फिर भी इस पोएम में पोएट ने बहुत अच्छी तरीके से एग्जाजरेशन का उपयोग करते हुए भी अपना आर्ग्यूमेंट जो है कि ट्विंस को जो प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं वो बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किए, इस पोएम में एक्सप्रेस किए हैं. So let's understand the poem. First we are going to read the whole poem. I hope you will understand, not only understand, but you will enjoy the poem. Just look here. In form and feature, face and limb, I grew so like my brother, that fox got taking me for him, and each for one another. It puzzled all our kith and kin. It reached a fearful pitch, for one of us was born a twin. Yet not a soul knew which. One day, to make the matter worse, before our names were fixed, as we were being washed by nurse, we got completely mixed. And thus, you see by fate's decree, or rather nurse's whim, my brother John got Christianed me, and I got Christianed him. This fatal likeness even dodged my footsteps when at school, and I was always getting flogged for John turned out a fool. I put this question fruitlessly to everyone I knew. What would you do if you were me, to prove that you were you? Our close resemblance turned the tide of my domestic life, for somehow my intended bride became my brother's wife. In fact, year after year, the same absurd mistake went on. And when I died, the neighbors came and buried brother John. पोएम बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ह्यूमरस है, पढ़ते ही समझ में आई होगी. स्टिल वी कैन अंडरस्टैंड द पोएम फ्रॉम स्टैंजा. Look here, this is a picture of a twin looking so beautiful and nice. Same, their faces are same, their nose are same, their lips are same, their eyes are same, they look same alike, same close resemblance is there. बहुत same दिखते हैं ना ये. Let's understand the first stanza. Here, in form and feature, face and limb, I grew so like my brother, that fox got taking me for him, and each for one another. It puzzled all our kith and kin. It reached a fearful pitch, for one of us was born a twin, yet not a soul knew which. बहुत सुंदर तरीके से बताया है, देखो. In form and feature, face and limb. फॉर्म एंड फीचर में, फॉर्म मतलब पूरे शरीर का स्ट्रक्चर और सारे अवयव, फीचर्स मतलब
अवयव जो है, फेस एंड लिम्ब, फेस के भी सारे, अपना फेस जो है ना वो फेस, और उसके लिम्ब, लिम्ब मतलब अवयव, ये सेम आर, दीज आर द सेम, आई ग्रू सो लाइक माई ब्रदर, मैं किसके जैसे पैदा हुआ हूँ, ग्रू मतलब बड़ा हूँ, ग्रो का पास्ट टेंस क्या है, ग्रू, आई ग्रू सो लाइक माई ब्रदर, किसके जैसा मैं बड़ा हूँ, जस्ट लाइक माई ब्रदर. सो हियर द पोएट वांट्स टू से दैट I am same like my brother. My forms and features, my face and limbs are same like my brother. That fox got taking me for him. Here fox means people. I am so like my brother that people started feeling that taking me for him. लोग मुझे उसकी जगह पे समझने लगे. जब भी वो नहीं होता है तो उनको लगता था, मुझे देखकर वो क्या कहते थे कि वही है. एंड ईच फॉर वन अनदर, अगर मैं रहा तो मेरी जगह पे उसे समझ लेते थे, और वो रहा तो उसकी जगह पे मुझे समझ लेते थे. डू यू अंडरस्टैंड दिस टू लाइन्स? दैट फॉक्स गॉट टेकिंग मी फॉर हिम एंड ईच फॉर वन अनदर. दैट पीपल स्टार्टेड थिंकिंग दैट पीपल ऑलवेज रिप्लेस ईच ऑफ अस, मतलब दोनों को लोग क्या करते थे, रिप्लेस करते थे, एक को दूसरा कहते थे, दूसरे को एक कहते थे. It puzzled all our kith and kin. हम we both are so alike. हम दोनों इतने closely resembled थे that it puzzled all our kith and kin. Puzzle करना मतलब confuse करना. Confuse मतलब गड़बड़ हो जाती थी सारे हमारे किसकी, kith and kin की. Kith and kin मतलब relatives. Relatives मतलब सारे सगे संबंधी होते हैं ना अपने, उनको क्या कहते हैं, kith and kin. So our close resemblance puzzled or confused all the relatives, all the kith and kin. सारे रिलेटिव्स को, सारे नाते संबंधी लोगों को ये क्या करते थे, हमारा जो क्लोज रिजम्बलेंस है, सेमनेस जो है, वो क्या कर देता था, पजल्ड कर देता. इट रीच्ड अ फियरफुल पिच. इतना यहाँ तक सिंपल था कि आई वॉज लाइक माई ब्रदर इन फॉर्म एंड फीचर, फेस एंड लिम्ब. पीपल गॉट वन फॉर अनदर. It puzzled our kith and kin, but it reached a fearful pitch. लेकिन एक बार ये क्या हो गया, रीच मतलब पहुंचना, fearful pitch मतलब बहुत एक लिमिट तक पहुंच गया. लिमिट, fearful मतलब बहुत ही डरावने, बहुत ही बेकार, डरावने लिमिट तक पहुंच गया. कब? For one of us was born a twin. जब हम में से एक क्या हुआ, ट्विन पैदा हुआ. ट्विन मतलब जुड़वा पैदा हुआ. Yet not a soul knew which. पता नहीं उन हम दोनों में से. Not a soul, यहाँ पे soul का मतलब आत्मा नहीं है. किसी को भी पता नहीं है कि हम में से कौन सा ट्विन है. मैं ट्विन हूँ या वो ट्विन है, ये कोई भी जानता नहीं है. तो क्या देखा इस छोटे से पैराग्राफ में हम लोगों ने, स्टांजा में, that in form and feature, in whole body parts, in whole face and limbs, the poet grew like his brother. They were so alike, they were so closely resembled that people started feeling one for another. It not only people started feeling one for another, but it also puzzled all the relatives, all the kith and kin. How this happens? It reached a fearful pitch. ये सब बहुत बहुत खराब लिमिट तब कब पहुंच गया? For one of us was born a twin. हम दोनों में से एक क्या पैदा हुआ? ट्विन पैदा हुआ. But don't know. किसी को भी पता नहीं हम दोनों में से कौन सा ट्विन है. We can see all these things through picture. Look here. In form and features. These are the features. Features समझते हैं ना, बॉडी के सारे पार्ट जो अवयव जो है, हाथ, कान, आंखें, नाक, all these things are same. ये दो ट्विन्स है, इनके क्या है, क्लोजली रिजेंबल्ड है, दोनों एक दूसरे से सेम है. देखो अब चित्र से भी यहाँ से पता चलता है कि आंखें सब सेम है. दिस इज द फेस एंड लिम्ब, सेम. एंड यहाँ पे फीचर्स सब क्या है, सेम है. The poet grew like his brother. The poet grew like his brother. Poet जो है वो किसके जैसा बढ़ने लगा, उसके भाई जैसा. It was so alike that look here, you can see the picture of twins. कैसे दिख रहे हैं twins? Nose are same, eyes are same,
lips are same, hands are same, color is also same. So these are the twins that people started, it puzzled our किथ एंड किन. ये सारे किथ और किन है. किथ और किन मतलब ये सब क्या है, रिलेटिव्स है. किसके, इन दोनों के रिलेटिव्स है. ये सारे रिलेटिव्स क्या है, देखो कंफ्यूज है. सब कैसे है, कंफ्यूज है, पजल्ड है. किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ द क्लोज रिजेम्बलेंस ऑफ दिस टू, ऑफ दिस ट्विन्स. इन ट्विन्स की वजह से ये सब क्या है, कंफ्यूज्ड है. All the features are same, limbs are same, everything is same. These are the two twins baby, same, and it creates the humor. ये ह्यूमर हंसी पैदा कर देते हैं. देखो उनकी तरफ देखकर भी हंसी पैदा होती, क्योंकि बहुत सेम टू सेम है, तो सारे कंफ्यूज हो जाते हैं उनकी तरफ देख के. कौन कौन कंफ्यूज हो रहा है यहाँ पे, कौन कंफ्यूज हो रहा है, अपने सारे किथ एंड की रिलेटिव्स सारे क्या हो रहे हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं. तो क्या देखा हम लोगों ने बच्चों इस स्टैंजा में, दैट द पोएट इज वन ऑफ द ट्विन. पोएट जो है हमारा क्या है, वन ऑफ द ट्विन. इन फेस एंड फीचर, उनके सारे फेस और फीचर्स में वो क्या है, सेम है, अपने ब्रदर जैसे ही है. दैट पीपल फॉक स्टार्टेड फीलिंग वन फॉर अनदर. लोग एक दूसरे को समझ बैठते थे, एक को दूसरा समझते थे, दूसरे को पहला समझते थे. ये ए है तो इसको बी समझते थे, बी है तो बी को ए समझते थे. इससे कंफ्यूजन उनके बीच में होता था. नॉट ओनली पीपल वेर कंफ्यूज, बट हु वेर अगेन कंफ्यूज, किथ एंड कीन. ऑल द relatives were also confused. और ये सब क्यों हुआ, one of us born twin. दोनों में से एक क्या पैदा हुआ, ट्विन पैदा हुआ. और इसकी वजह से ये कौन सी पिच पर पहुंच गया, फियरफुल पिच. फियरफुल पिच का मतलब क्या होता है, फियरफुल मतलब बहुत ही भयानक लिमिट तक ये पहुंच गया कि लोग गड़बड़ करने लगे. फिर आगे क्या क्या होने वाला है, इस क्लोज रिजेम्बलेंस की वजह से क्या क्या मजा आया, कुछ कुछ और भी अलग अलग हो गया है, तकलीफें भी हुई है. वो सब कुछ क्या होने वाला है वो हम लोग नेक्स्ट स्टैंजा में देखेंगे. तब तक थैंक यू.